students, today we'll learn how to write a biographical sketch. But before knowing that, we should know what is a biographical sketch. A biographical sketch means an account of the life and activities of an individual or family. किसी भी एक इंडिविजुअल या फैमिली के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ भी लिखना इज़ अ बायोग्राफिकल स्केच. ये बहुत शॉर्ट होता है, हम एक या दो पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें कंक्लूड कर देते हैं. It would include information about the person's name, place of residence, education, occupation, life and activities and other important details. इसमें हम उस इंसान की लाइफ के बारे में, उसका नाम, उसके रहने की जगह, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स वो क्या काम करता है, उसने लाइफ में क्या अचीवमेंट्स किए, सब कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट होता है वो लिखते हैं. So what are the tips for writing a biographical sketch? क्या ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर हम एक अच्छा बायोग्राफिकल स्केच लिख सकते हैं? Come, let's know. So the first one is remember your purpose. Purpose आप क्यों लिख रहे हैं ये आपको याद रखना है. Biographical sketches usually provide an account of a person's life and include core information. If you are writing a bio sketch about someone else, you will want to focus on the following basic information: full name, date, place of birth, family background, occupation and major accomplishments. सबसे पहले हम क्यों लिख रहे हैं. अगर हम किसी और के बारे में लिख रहे हैं तो उसका नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुआ, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, काम क्या है और उसने क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स की हैं, सब कुछ हमें इंक्लूड करना होगा. We can also write biographical sketches about ourselves. हम अपने बारे में भी biographical sketches लिख सकते हैं, otherwise known as autobiographical sketches, और उसको हम autobiographical sketches भी कहते हैं. When we need to promote ourselves, say for a book or presentation, generally हम autobiographical sketch अपने आप को promote करने के लिए किसी book या presentation में डालने के लिए लिखते हैं. Often we need to create professional portfolios that include a resume, sample of professional work and a biographical sketch. और इन सब में क्या होता है कि हमें अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, रेज्यूमे हो गया या कोई भी प्रोफेशनल वर्क का एक्सपीरियंस और जो भी होता है, या फिर हमारा खुद का बायोग्राफिकल स्केच. In these instances, the primary focus is major accomplishments, which we will see in some of the examples at last. ओके, तो जनरली क्या होता है कि हम प्राइमरली फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि हमने क्या अचीव किया है. देन बी कंसाइज, आपको कंसाइजली इस चीज को लिखना होता है. इट्स बेस्ट टू एम फॉर अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स इन दीज स्केचेस. वेल, 500 words are so more and it is to be targeted for the 10th or 12th class students, but as you are in grade 7, आप लोगों के लिए 100 words का भी biographical sketch enough है. 80 to 100 words are more than enough. One paragraph is more than enough. That's it. So remember, जो भी हम sketch लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें मिलाकर एक पैराग्राफ तो होना ही चाहिए, and that paragraph should have 80 to 100 words. Okay, and you'll want to tap into those core categories included background and history along with pertinent accomplishments. You will however have to select only the most noteworthy sentiments, as you'll be confined to approximately one single spaced page. Here ऐसा लिखा है कि page, but it would be paragraph. आपको एक पैराग्राफ में उन सारी चीज़ों को, उसकी बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, सारी चीज़ें उसी एक पैराग्राफ में लिखना है. देन हाईलाइट अचीवमेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस, उसके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है, जो उसने अच्छा काम किया है उसको हाईलाइट करना है.
Okay, try to highlight notable achievements that will impress the audience and make the subject a more memorable one. ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना है जिससे वो जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी बायोग्राफिकल स्केच लिख रहे हैं, वो ज़्यादा याद रहे लोगों को. Mention how these accomplishments affected the subject's life. Likewise, you can also incorporate personal influences into the sketch. आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी accomplishments को mention करना है. For example, Anne Handley is a Wall Street Journal best-selling author who speaks worldwide about how businesses can escape marketing mediocrity to ignite tangible results. IBM named her one of the 7 people shaping modern marketing. यहाँ पे हमने एन हैंडली के शी इज़ अ वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, जो एक ऑथर थी और उन्होंने वर्ल्ड वाइड बिजनेस में से मार्केटिंग मेडियोक्रिटी से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताया था. तो आईबीएम ने उनको वन ऑफ दी 7 पीपल में जो मॉडर्न मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसको एक नया शेप दे रहे हैं, उसमें इंक्लूड किया था. तो ये क्या किया है कि उसकी ये इन्फ्लुएंस है, उसने एक नया एक इम्पैक्ट क्रिएट करा, उसको इसमें डाला गया. तो दिस इज द स्निपेट फ्रॉम मास्टर मार्केटर एंड हैंडलीज बायोग्राफिकल स्केच. इन इट शी मास्टरफुली हाईलाइट्स हर अचीवमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन हर इंडस्ट्री. इसमें ये एन हैंडले ने खुद अपने बारे में लिखा हुआ है और अपनी सारी अचीवमेंट्स और अपने इन्फ्लुएंसेस को हाईलाइट किया हुआ है. देन द लास्ट वन इज अरेंज योर इन्फॉर्मेशन. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे present करेंगे. Once you have gathered all the necessary information to compose a biographical sketch, it's time to format your facts. Will you retell the person's life in chronological order, or will you lead with their major achievements and then circle back to tell their full story? अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अचीवमेंट्स, उसके इन्फ्लुएंसेस से अपना पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं या सिंपली आप जो भी एक ऑर्डर आपको दे रखा है उसके थ्रू लिख रहे हैं. Okay, so let us see an example. So the sample question is, with the help of the given clues, write a bio sketch of Subhash Chandra Bose in not more than 80 to 100 words. So अब यहाँ पे हमें बहुत सारे उनके बारे में क्लूज दे रखे हैं, जैसे कि नेम सुभाष चंद्र बोस और नेताजी, कंट्रीब्यूशन इमेंस फ्रीडम फाइटर, born January 23, 1897 in Cuttack, Odisha. Career, civil services. Achievements, joint struggle, established Indian National Army. Motto, give me blood and I'll give you freedom. Setback, retreat after the defeat of Japan and Germany. Death, air crash over Taipei, Taiwan on August 18, 1945. अब ये कैसे इन क्लूज को यूज करके पैराग्राफ में डालना है वो देखेंगे. सुभाष चंद्र बोस, अफेक्शनेटली कॉल्ड नेताजी. सुभाष चंद्र बोस जिनको प्यार से नेताजी भी कहा जाता था, was born on January 23, 1897 in Cuttack, उड़ीसा. उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक सिटी में हुआ. He was one of the most prominent leaders of Indian freedom struggle. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, वो उन लीडर्स में शामिल थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में थे. डीपली मूव बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर, ही गेव अप अ प्रॉमिसिंग करियर इन द सिविल सर्विस टू जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट. और जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा करियर सिविल सर्विस में अपना तय किया और फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया. ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया. उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई ताकि ब्रिटिशर्स को हम इंडिया से बाहर भेज सकें. हिज फेमस मोटो वॉज गिव मी ब्लड एंड विल गिव यू फ्रीडम. और उनका मोटो क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. हाउएवर, डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फोर्स्ड आईएनए टू रिट्रीट एंड इट कुड नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. लेकिन जापान और जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए तो आईएनए को अपना, आईएनए मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी को अपना ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना था वो नहीं कर पाए थे. सुभाष चंद्र बोस वॉज रिपोर्टेडली किल्ड इन एन एयर क्रैश ओवर ताइपेई ताइवान फॉर्मोसा ऑन अगस्त 18, 1945. और उनका ऐसा
रिपोर्ट के मुताबिक है कि तापई क्रैश हुआ था, एयर क्रैश, उसमें अगस्त 1945 में उनकी डेथ हो गई. सो इफ यू विल सी द क्लूज, you can see that the biographical sketch is written in the chronological order. chronological order मतलब जैसे जैसे दिया है, जो जो हुआ है, पहले ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, उसी तरीके से किसी चीज को लिखना. लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते थे नेताजी, या फिर उनके अचीवमेंट से शुरू कर सकते थे, या कुछ भी इस तरीके का. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बट all those things should be covered within 80 to 100 words in just one paragraph. This is all for today. Keep learning, keep growing.